أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم اخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. ہم لوگ نا جو القول السدید میں اب تک اسباق پڑھ چکے ہیں وہ سارے بالکل انفارمیشن کی طرح تھے، کچھ عمل کے متعلق تھے، کچھ کے متعلق تھے۔ اب ہمارا جو آج سبق نمبر 8 ہے اور یہاں سے جو ہم نے باتیں پڑھنی ہے نا اس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، لرننگ پر بھی اور میموریزیشن پر بھی۔ آپ کو کتاب کھول کے پڑھنا بھی پڑے گا اور سمجھنے کے لیے لکھنا بھی پڑے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ جو کتاب پہ لکھا ہوا ہے وہی تو ہمیں دوبارہ لکھنا پڑ رہا ہے نا، ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہوتا ہے تو آپ کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، لکھنا بھی پڑتا ہے، سننا بھی پڑتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے۔ ان 4 کاموں کے بغیر جو ہے وہ آپ کسی بھی علم کو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں سے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس کے پہلے پڑھیں کتاب سے سبق سن، پھر اس کو نوٹس لیں اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، فہم کافی نہیں ہے، آپ کو چیزیں جو ہیں وہ یاد بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اب ہمارا جو ہے نا ٹاپک وہ آ گیا ہے ابتدا کے متعلق۔ ٹھیک ہے، ابتدا کے متعلق نا 2 باتیں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے قرآن کی ابتدا کی، ٹھیک ہے، تو ہر تلاوت کے آغاز میں، ہر تلاوت کے آغاز میں، ہر تلاوت کے آغاز میں، یہ بات میں آپ کو یاد کر سمجھ لیں، بھول، ہر تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ کو نا ہم یہاں پہ لفظ بولیں گے استعاذہ۔ ٹھیک ہے، استعاذہ، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اعوذ باللہ کو اگر ہم استعاذہ پڑھنا کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ نے اب یاد کر لینا، لکھیں اور اس کو یاد کر لینا کہ ہر تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر تلاوت کے آغاز میں استعاذہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہر تلاوت کے آغاز میں استعاذہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آج ہمارا پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ ایسے بسم اللہ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اہل عرب اس کو ایسے لکھتے تھے، بسم اللہ کو بسم اللہ کہہ دیتے تھے، الحمدللہ کو حمد اللہ کہتے تھے، شارٹ فارم یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات، 2 باتیں بہت ہی اہم ہیں، بار بار ہم اس کو دہراتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ پہلی بات کیا ہے، ہر تلاوت کے آغاز میں استعاذہ پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہر سورت کے آغاز میں یا شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بار بار اس کو ریپیٹ کر لیں، ہر تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ہر تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ یعنی کہ استعاذہ پڑھنا ضروری ہے، ہر بسم اللہ پڑھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں، تو ابتدا کی نا 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ تلاوت کو شروع کریں۔ تلاوت شروع کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی تلاوت۔ ابتدائی تلاوت کریں کہاں سے؟ جہاں سے آپ نے تلاوت شروع کی ہے نا وہ سورت کی ہی ابتدا ہو، اس کو کہتے ہیں ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت۔ یہ اب آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیسن پلے کیا، لیسن چل رہا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں انفارمیشن آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کے میموریزیشن ہے، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، ابھی یاد کریں۔ پہلی شکل کیا ہے ابتدا کی کہ پڑھنے والے نے ابتدا کی، تلاوت کی ابتدا کی، اور کہاں سے کی؟ سورت کی ابتدا سے۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شکل ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لیں، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ دوسری شکل کیا ہے ابتدا کی؟ ایک شخص پڑھ رہا تھا، اس نے تلاوت شروع کی، اس نے تلاوت کسی نے شروع کی، آپ نے یعنی کہ قاری نے، ابتدائی تلاوت، لیکن سورت کے درمیان سے،
सूरत के दरमियान से, दरमियाने सूरत, इब्तिदाए तिलावत, दरमियाने सूरत। अगर कोई तिलावत की इब्तिदा करता है और सूरत के दरमियान से करता है, इससे कहते हैं इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत, इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत। ठीक है। अब तक हमने दो शक्लें पढ़ ली। पहली क्या, इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत। दूसरी शक्ल क्या है, इब्तिदाई तिलावत दरमियाने सूरत। पहली शक्ल क्या है, इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत। दूसरी शक्ल क्या है, इब्तिदाई तिलावत दरमियाने सूरत। अब क्या हुआ, कोई बंदा पढ़ रहा था, तिलावत कुरान पाक कर रहा था, करते करते ये हुआ कि उसकी अपनी सूरत खत्म हो गई और उसने सूरत जो है ना, अब पढ़ रहा है, तिलावत नहीं खत्म की, अब उसने अगली सूरत शुरू करनी है तिलावत के दरमियान में। यानी कि अब कोई इब्तिदाई सूरत कर रहा है। ठीक है। पहले दो शक्लों में हमने इब्तिदाई तिलावत लिखा था ना, यहाँ पे इब्तिदाई सूरत है लेकिन दरमियाने तिलावत। इस बात का मतलब क्या है कि पढ़ते पढ़ते कोई सूरत दरमियान में आ गई है, दरमियाने तिलावत। अब आपने ना ये इब्तिदा की तीनों शक्लें याद करनी है। इसको मैं जरा छोटा करके एक पेज पे कर देती हूँ, आपको नजर आए। पहली शक्ल क्या है, इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत, यानी कि आपने तिलावत की इब्तिदा की सूरत की इब्तिदा से। दूसरी शक्ल क्या है, इब्तिदाई तिलावत दरमियाने सूरत, आपने सूरत तिलावत की इब्तिदा की लेकिन सूरत के दरमियान से। आपने आपने तिलावत की इब्तिदा की लेकिन सूरत के दरमियान से। और तीसरी शक्ल क्या है, आपने सूरत की इब्तिदा की तिलावत के दरमियान से। अब हमने इसमें सीखना क्या है, अब हमने ये सीखना है कि हर शक्ल में आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या हुक्म होगा। अब आप बताएं। हमने दो पॉइंट्स याद किए थे ना शुरू में, अभी अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमने कहा था ये दो पॉइंट है ना, ये हमारे बहुत ही अहम दो पॉइंट्स हैं। ये वाले, एक ये था और एक ये था कि हर तिलावत के आगाज में इस्तिआज़ा जरूरी है। और दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह जरूरी है, हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह जरूरी है। ये दो पॉइंट्स जो है ना अभी हमने याद किए थे, तो ये दो पॉइंट जो है ना अभी हमने इनका इस्तेमाल करना है इन तीन शब्द। अगर आप इब्तिदाई तिलावत करते हैं ना, इब्तिदाई तिलावत करें तो क्या होगा, इब्तिदाई तिलावत की वजह से पढ़ेंगे इस्तिआज़ा, और इब्तिदाई सूरत की वजह से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह। ठीक है। इब्तिदाई तिलावत की वजह से इस्तिआज़ा और इब्तिदाई सूरत की वजह से बिस्मिल्लाह। यही तो पढ़ा ना, हर तिलावत के आगाज में इस्तिआज़ा जरूरी है, हर सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह जरूरी है। तो इस शक्ल में अगर कोई बंदा इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत है, उसकी तिलावत की कंडीशन इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत की बनती है, तो उसके लिए आउज़ बिल्लाह भी पढ़ना और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ना जो है वो जरूरी होगा। ये एक शक्ल हो गई। अब दूसरी शक्ल पे आए। अब कोई शख्स है, उसने तिलावत की इब्तिदा की ना, तो इब्तिदाई तिलावत की वजह से क्या होगा, इस्तिआज़ा होगा। और दरमियाने सूरत पे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी नहीं होता है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी होता है इब्तिदाई सूरत में। लेकिन यहाँ पर तो दरमियाने सूरत आ गया, तो बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े इख्तियार है। ठीक है। अब आपको फर्क समझ आ रहा है। पहले शक्ल में बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी था, लेकिन दूसरी शक्ल में कोई बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े, पढ़े या ना पढ़े, पढ़ने वाले को इख्तियार है। अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह दो वजह पर बन जाएंगी, और अगर कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो इस्तिआज़ा के बाद फौरी आयत से तिलावत शुरू हो जाएगी। अब हमारी तीसरी शक्ल क्या है, इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत। अब इब्तिदाई सूरत की वजह से बिस्मिल्लाह हो गई। ठीक है। और तिलावत का दरमियान है ना, दरमियाने तिलावत में तो इस्तिआज़ा नहीं होता, तो इस्तिआज़ा नहीं होगा। अब आपने ये तीन बातें अच्छे से रख लेंगे। पहली बात ये, अगर आपको दो पॉइंट समझ आया ना, तो फिर आप आगे चल सकते हैं। ये दो पॉइंट क्या है कि हर तिलावत के आगाज में आउज़ बिल्लाह पढ़ना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हर सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इब्तिदा की तीन सूरतें बनती हैं। एक ये बनती है कि इब्तिदाई तिलावत इब्तिदा सूरत हो, तो इब्तिदाई तिलावत की वजह से इस्तिआज़ा आएगा, और इब्तिदाई सूरत की वजह से, ठीक है, इब्तिदाई सूरत की वजह से बिस्मिल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या कहा कि
इब्तिदाई तिलावत की वजह से इस्तिआज़ा, और दरमियानी सूरत की वजह से बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े इख्तियार होगा। फिर इब्तिदाई सूरत की वजह से बिस्मिल्लाह आएगी, दरमियानी तिलावत की वजह से इस्तिआज़ा नहीं आएगा। यहाँ तक हमारी बातें पूरी हो गई हैं। मेरा ख्याल है कि हमने जितनी बुनियादी चीज़ थी ना वो समझ ली है। अब आपकी लर्निंग है, आप इसे कितना लर्न करते हैं, आप इसको कितना याद करते हैं, अपने जहन पे कितना जोर डालते हैं। कुछ लोग पढ़ते नहीं है, बस सुन ही लेते हैं, सुनने से ये कहते हैं ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, सादी सिंपल सी बात है। अगर आप इसको याद करें, पहले समझे ध्यान से, बात को फॉलो करें मैंने क्या पढ़ा है, फिर उसके बाद आप इसको याद करें, तो बहुत ही आसान बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। और ये पक्का होगा तो फिर आगे का सबक समझ आएगा। ये पूरा टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ तक हमारी ना एक बात मुकम्मल हो गई। अब आपको पता है, एक सूरत होती है, अब कोई पढ़ रहा था ना, उसने इब्तिदाई सूरत दरमियाने तिलावत है, और जो इब्तिदाई सूरत दरमियानी तिलावत है, अब इसमें जो इब्तिदाई सूरत है, अगर वो सूरह बराअत हो जाए, पढ़ते पढ़ते सूरह बराअ या सूरह तौबा जिसको कहते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तिलावत के दरमियान में अगर सूरह बराअत को शुरू करना पड़ जाए, अभी हमने ये पढ़ा ना कि इब्तिदाई सूरत दरमियाने तिलावत में बिस्मिल्लाह होती है, अब ये पढ़ा। लेकिन ये इब्तिदाई सूरत अगर सूरह बराअ हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाएगी, फिर बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाएगी। अगर इब्तिदाई सूरत दरमियाने तिलावत में इब्तिदाई सूरत सूरह बराअ आ जाती है, जिसे हम सूरह तौबा कहते हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाएगी। तो सवाल ये है कि फिर सूरह तौबा को जो है वो अगली सूरत सूरह अनफाल के, सॉरी, सूरह अनफाल को सूरह तौबा के साथ कैसे मिलाया जाएगा? कैसे मिलाएंगे सूरह अनफाल को सूरह तौबा के साथ? सवाल तो अब हमारे पास ये है। तो अगर आपने सूरह अनफाल को मुकम्मल करना है, साथ ही सूरह तौबा को शुरू करना है, तो आप तीन तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका है फसल, दूसरा तरीका है वसल, और तीसरा तरीका है सख्ता। अब पहले आप ये कहें ये बात ने पता नहीं क्या बता दिया, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको पहले नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप किसी से मिलते हैं, पहले आप उसका नाम याद करते हैं ना, उसके बाद ही आपको तारुफ होता है। जब आप किसी चीज का तारुफ लेते हैं, किसी भी इंसान का, तो क्या होता है, पहले आपको उसका नाम आना चाहिए। तो अब जो पढ़ने का तरीका है ना, सबसे पहले आप इसका नाम याद करें कि पढ़ने के तीन तरीके हैं, फसल वसल सख्ता, फसल वसल सकता, फसल वसल सकता। ठीक है, अगर आपने सूरह अनफाल को मुकम्मल करके फौरी ही सूरह तौबा को शुरू करना है, तो बैनल अनफाल वल बराअ पढ़ने के तीन तरीके हैं, फसल वसल सकता, फसल वसल सकता। चले, नाम याद हो गए, अब हम देखते हैं कि फसल वसल सकता ये होता क्या है ना। अच्छा, फसल कहती है काटने को। आप क्या करें कि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बस अलीम पे वक़्फ़ कर लें। फिर आप पढ़ें बराअतुम मिनल्लाह, अब पूरी आयत आप आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फसल का मतलब क्या होगा? आपको अपना सांस काटना पड़ेगा, आपको अपना सांस तोड़ना पड़ेगा। आपने सूरह अनफाल की आखिरी आयत पर अपने सांस को तोड़ देना है, सांस को खत्म कर देना है, वक्फ कर देना है। फसल करने को ना वक्फ करना भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपल वक्फ करते हैं कहीं पे भी, तो एक तरीका ये है। और फसल जो है बिस्मिल्लाह के बगैर ही होगा, याद रखना है। ये तीनों तरीके जो हैं वो बिस्मिल्लाह के बगैर के हैं, बिस्मिल्लाह के साथ के नहीं हैं। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है कि आप वसल कहते हैं मिलाने को, जोड़ने को। आप सूरह अनफाल की आखिरी आयत को सूरह बराआ की पहली आयत के साथ जोड़ दें, दोनों आयतों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ें। अब जब आप दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम, अलीमुम बराअह, अलीमुम। तनवीन के बाद बा आ जाए ना, तो आवाज मीम में बदल जाती, छोटी सी मीम लग जाएगी। अलीमुम ऐसे जोड़ेंगे, वसल ऐसे होगा। सकता, सकता कहते हैं आवाज को रोकना,
सांस तोड़े बगैर आवाज को थोड़ी देर के लिए रोक लेना। ठीक है। अच्छा, अब सक्ता कैसे होता है? सक्ता में जो आपने जिस हर्फ पर सक्ता करना होता है ना, आप उसको थोड़ी देर साकिन कर देते हैं। उसको साकिन करते हैं, साकिन करने के बाद आवाज बंद करते हैं, लेकिन सांस नहीं तोड़ते। उसी सांस से अगली आयत शुरू करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, सक्ता किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर आपने सक्ता करना होता है उसको वक्फ की तरह साकिन करके, आवाज रोककर, सांस तोड़े बगैर एक ही सांस में अगली आयत को शुरू करना। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बराअह, अलीम, बराअह। अलीम पे रुकना है पर सांस नहीं तोड़ना। ठीक है। फसल और सक्ता में क्या फर्क है? फसल में सांस तोड़ देते हैं, लेकिन सक्ता में हम सांस नहीं तोड़ते हैं। समझ आ गई है? तो ये जो बातें हैं ना, ये सारी याद करने। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं कि जैसे कोई अभ्यास कह लेना, जैसे हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी बातें समझ रहे होते हैं, तो अभ्यास हम पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद करेंगे। अभी हमने टॉपिक को पहले याद करना है, अब आपने सबक को याद करना है। ये जरूरी है कि आपको सबक याद हो। सबक में हमने तीन ही तो बातें पढ़ी हैं। पहली बात ये पढ़ी है कि हर तिलावत के शुरू में इस्तिआज़ा होता है। दूसरी बात, उसी बात में हमने ये पढ़ा कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह होती है। फिर हमने कहा कि इब्तिदा की तीन किस्में होती हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत, इब्तिदाई तिलावत, दरमियानी सूरत, इब्तिदाई सूरत, दरमियानी तिलावत। फिर हमने क्या किया कि हमने इस पहले और दूसरे पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। तो हमें ये पता चला कि इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत में इस्तिआज़ा, बिस्मिल्लाह दोनों चीजें पढ़ी जाती हैं। लेकिन इब्तिदाई तिलावत, दरमियानी सूरत में इस्तिआज़ा तो जरूरी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना में मर्जी होती है। और इब्तिदाई सूरत, दरमियानी तिलावत में सिर्फ बिस्मिल्लाह होती है और इस्तिआज़ा नहीं होता है। फिर हमने इब्तिदाई सूरत, दरमियानी तिलावत की ही एक शक्ल ये देखी। अगर कोई शख्स सूरह अनफाल को मुकम्मल करके सूरह बराआ को शुरू करता है, तो फिर वो क्या करेगा? क्योंकि सूरह बराआ के शुरू में तो बिस्मिल्लाह नहीं है, तो हमने ये कहा कि अनफाल और बराआ को आपस में जोड़ने के तीन तरीके होते हैं, और तीनों के तीनों तरीके जो हैं वो बिस्मिल्लाह के बगैर होते हैं। और इन तरीकों को कहते हैं फसल, वसल, सक्ता। फसल, वसल, सक्ता। फसल क्या होता है? सांस लेना, और सांस लेना और सांस तोड़ के देना, आवाज भी रोक देना और सांस भी तोड़ देना। वसल क्या होता है? सांस भी नहीं तोड़ना, आवाज भी नहीं तोड़नी, दोनों हरूफ को मिला के पढ़ना। सक्ता क्या होता है? कि पहले हर्फ को साकिन करके आवाज को रोक कर एक ही सांस में अगली आयत को शुरू करना। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्हें लफ्ज जो है वो मुश्किल लगते हैं पहली बार पढ़ने की वजह से, किसी भी वजह से, तो उनके लिए हम किताब से भी इस टॉपिक को फटाफट साथ ही पढ़ लेते हैं। कहते हैं इब्तिदा के इकसाम, तावुज और बिस्मिल्लाह के एतबार से। आज हमने सबसे पहले तावुज और बिस्मिल्लाह को डिस्कस किया था ना, तो उन्होंने इसके हेडिंग क्या बनाई है? तावुज और बिस्मिल्लाह के एतबार से। क्या कहते हैं? अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के शुरू से की जाए तो आऊज़ु बिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है। साथ उन्होंने मिसाल भी दे दी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इब्तिदाई सूरत है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तो साथ इस वजह से इब्तिदाई तिलावत भी है और इब्तिदाई सूरत भी है। तो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों जो हैं वो पढ़ी जाएंगे। और ये बात हमने डिस्कस कर ली है, आपने याद भी कर लिया इंशाल्लाह। फिर कहते हैं अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के दरमियान से की जाए, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के दरमियान से की जाए, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के दरमियान से की जाए। ठीक है। तो आप बताएं क्या होगा? बता सकते हैं ना, तिलावत की इब्तिदा की वजह से औज़ बिल्लाह जरूरी है, और सूरत के दरमियान में बिस्मिल्लाह में इख्तियार है। ठीक है। चलें आगे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। कहते हैं आओ, पहला तरीका क्या है अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनन नासि मन यक़ूलु, सूरत के दरमियान की आयत लिखती है। और दूसरा तरीका क्या होगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नास। ठीक है।
اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، یہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا۔ کہتے ہیں اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے، جیسے وَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اچھا، ادائیگی میں کوئی کمی بیشی دیکھیں تو اس کو اگنور کر دیں۔ مکمل ادا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی ہی تھی، ہم لوگ تو سیکھتے سیکھتے سیکھ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں یہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں سورۃ توبہ کے شروع میں کسی حالت میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی چاہے تلاوت کی ابتدا سورۃ توبہ سے کی جائے یا پڑھتے پڑھتے سورۃ توبہ درمیان میں آ جائے۔ یہ بات ہو گئی، بسم اللہ کا نوٹ لکھ دیا۔ پھر میں وہ کر دیا، سمرائز کر دیا ہے سبق کو کہ ابتدائے صورت میں استعاذہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں۔ انہوں نے تعوذ لکھا ہے تو کوئی حرج نہیں، تعوذ بھی ٹھیک ہے۔ ابتدائے تلاوت درمیانے صورت تعوذ ضروری اور بسم اللہ میں اختیار ہے۔ ابتدائے صورت اور درمیانے تلاوت میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، میں ایک لفظ بار بار استعاذہ استعمال کر رہی ہوں نا، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو یہ استعاذہ کیا ہے۔ استعاذہ کہتے ہیں پناہ طلب کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ لیتے ہیں نا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم سورہ توبہ کا نوٹ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو سورہ توبہ کا نوٹ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اگلے پیج پہ آئیں۔ اب اندر سے آپ نے کچھ بھی نہیں یاد کرنا ہے، بلکہ اس کو ہم نا ترتیب سے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس اب آپ لوگوں نے جو یہ پہلا صفحہ ہے نا، یہ والا پورا پہلا صفحہ ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اسی کو ہم نے آج پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی غلطی سے، سہو سے، نسیان سے بچائیں، آمین۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔